اس کے بعد بریڈفورڈ کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. 2:30 پر علماء اکرام تشریف لائیں گے. 3:30 پر MP حضرات اور دوسرے مہمان آئیں گے. اس کے بعد دوسرا سیشن شروع ہوگا جس میں مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے مہمان اور MP حضرات خطاب کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں جن بزرگوں کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ وہ لگائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے تحریک کے لیے کیا کام کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. شکریہ. اشفاق مجید وانی کی میت کو ایمبولینس سے باہر نکالنا مشکل ہو گیا ہے. مہربان مردگان جذبات سے سینہ پھوٹی کر رہے ہیں. مرضی کام جنرل سیکرٹری عظمت خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں.
محترم، ایک محب وطن کشمیر بہن کی جانب سے تمام محب وطن کشمیری بھائیوں کے نام دھرتی ماں کی بیٹی ہوں کے عنوان سے نظم پیش خدمت ہے۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ جب وقت پڑا آزما لینا، اس دل پہ گولی کھاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ میں سچی کشمیرن ہوں، میں جان کی بازی لگاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ مجھے گلا نہیں ان ویروں سے، مجھے گلا نہیں ان ویروں سے، پر سوئے ویر جگاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا جو گزری ماں بہنوں پر، جو گزری ماں بہنوں پر، بس اتنا سا بتلاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو، ان قبروں پر لے جاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ مقبول شہید اور وانی کا، مقبول شہید اور وانی کا، دونوں کا قول نبھاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ جب وقت پڑا آزما لینا، جب وقت پڑا آزما لینا، اس دل پہ گولی کھاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ جا کر ممتاز شہیدوں کی، جا کر ممتاز شہیدوں کی قبروں پر پھول برساؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ مقبول شہید اور وانی کا، مقبول شہید اور وانی کا، دونوں کا قول نبھاؤں گی۔ میں دھرتی ماں کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرض چکاؤں گی۔ میں اس کا قرض چکاؤں گی، میں اس کا قرض چکاؤں۔ شکریہ۔ جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تک جلدات پہ ہیبت طاری ہے۔ آج کا یہ جلسہ عام جس میں ہم بھی حضرات بھی شرکت کر رہے ہیں، اور جو شہید وطن اشفاق مجید وانی شہید کی پہلی برسی پر ہو رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ہم نے یعنی لبریشن فرنٹ نے برطانیہ میں اپنی بساط کے مطابق جو کام تحریک آزادی کے لیے کیا، آج ہم اس کی تفصیل آپ کو سنائیں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو مقررین یہاں ہم بلائیں گے وہ محض تقریر کی بجائے اپنے اس کام پر روشنی ڈالیں جو انہوں نے تحریک آزادی کے لیے کیا یا کر رہے ہیں۔ اب میں اپنے
अगले मुकर्रर को स्टेज पर दावत दूंगा जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के सीनियर नायब सदर हैं जनाब लतीफ मलिक साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इंतजार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदर महफ़िल, मेरे हमदम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे साथी ने कहा है कि अब तकरीरों का वक्त नहीं रहा और ना ही हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि तकरीरें करें, क्योंकि पिछले 42 सालों से हम तकरीरें करते ही रहे। अब जो वक्त की पुकार है, वक्त का तकाजा है और हालात का जो तकाजा है वो कुर्बानी मांगता है। और जिस तरह कश्मीरियों ने अपनी तारीख में साबित किया है कि वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते और न किया है। सब्ज़ अली खान और मिली खान की जिंदा खानें उतारी गई और बेशुमार इस तरह की मिसालें हैं। और अब जो तारीख इस दौर में दाखिल हो चुकी है, मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ लिबरेशन फ्रंट उसकी ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जब मैं ब्रैडफोर्ड में आता हूं और यहाँ मुझे वो सीन, वो वाकया, वो हालात याद आ जाते हैं कि 1973 में ये विक्टोरिया होटल है, मैं आते हुए अपने साथी से बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक दावत दी गई थी कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जो जंग लड़ना चाहते हैं बरतानिया में वो लोग यहाँ आए। तो मैं भी उन दिनों में, आज 1973 की बात कर रहा हूँ, आप अंदाजा लगा लेंगे ये 1991 है, तो मैंने भी एक खत लिख डाला कि मैं भी आना चाहता हूँ। तो मुझे उन्होंने जवाबी खत दिया कि भाई आप आ जाएं और फलां फलां जहाँ मीटिंग होगी। तो हमने यहाँ पर कश्मीर यूथ मूवमेंट की बुनियाद रखी 1973 में। उस वक्त ये आलम था कि मेरा ख्याल में बहुत कम लोगों को ये एहसास या कुछ पता था कि हमारा मुल्क जो है वो गुलाम है और उसको आज़ादी चाहिए, हमारी कौम को आज़ादी चाहिए। 1976-77 में जब जो है अमान खान साहब यहाँ आए तो उन्होंने लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी। तो हमने बजाय अपनी 1.5 इंच की मस्जिद को रखने के लिए, 1.5 इंच की मस्जिद रखने के बजाय हमने उसको लिबरेशन फ्रंट में शामिल कर लिया। तो हम उस कारवां के साथ चल पड़े। वो कारवां किसका था? वो शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट का कारवां था। और मैं उनके हाथों मेंबर बना और उनकी वो मुलाकात में, एक ही मुलाकात थी और जिस मुलाकात में मैं मेंबर बना और वो आखिरी मुलाकात थी। तो उनका जो पैगाम उस 1975 में था, मैं समझता हूं कि अगर पूरी कौम जो है और कश्मीरी जो है उस पर अमल करें और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम वहां अपनी मंजिल को पा लेंगे। और आज कश्मीर की जो आजादी की तारीख है, जो 1988 में लिबरेशन फ्रंट ने वहां पर शुरू की अमली तारीख, उसका नतीजा आपके सामने है। और मैं समझता हूं कि कुछ आप लोगों की कारस्तानियों की वजह से ये जो पिछला जो 5-7 माह गुजरे हैं और हमें जो कुर्बानियां जो है उनकी वो तफसील जो है और उनको तवील उसके जो सफर हो गया है, और आजाद कश्मीर वाले तो उसको बहुत नहीं महसूस कर रहे, बरतानिया में बैठे हुए हम उसको महसूस नहीं कर रहे, लेकिन मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन पर क्या गुजर रही है। और इस जलसे में ही वो अपनी ज़बानी आपको बताएंगे कि वहां क्या कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि शहीद की जो मौत है वो एक बका की तरफ दौड़ है। ये दुनिया जो है ये फानी है, हमने 100 साल के बाद भी मरना है, चाहे बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे या कि खुदा की राह में जान देते। तो शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट जब 1984 में उनको तख्तादार पर लगाया गया तो यहां पहली बार दुनिया को यह मालूम हुआ कि जब 20,000 आदमी जो है उसने स्ट्रैंड लंदन को ब्लॉक कर दिया और हम लोग वहां मौजूद थे
اور پولیس نے ہمیں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہوا کہ ایک تحریک نے وہاں سے ایک ایسا رخ اختیار کیا کہ جو کہ آج کشمیری جو ہے وہ دنیا میں ان کو ایک قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب برطانیہ میں یا کہیں اور بر صغیر کی بات ہوتی ہے تو ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ کشمیری قوم کی بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں ہندوستانی اور پاکستانی اور کشمیری جہاں بستے ہیں ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت جو ہے وہ تقریریں کرنے کا نہیں ہے، بلکہ وقت جو ہے وہ عملی کام کرنے کا ہے، اور برطانیہ میں بیٹھ کر ہم دو ہی محاذوں پر کام کر سکتے ہیں، ایک ہے سفارتی محاذ اور ایک ہے سیاسی محاذ۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے ہماری تحریک کو، ہماری کاز کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ شہید کشمیر مقبول بٹ نے جو تحریک شروع کی تھی، اب آج جو دن ہم منا رہے ہیں وہ مجید وانی، اشفاق مجید وانی کا دن ہے، اور جس طرح آپ نے فلم میں دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ سری نگر کی ان گلیوں میں کس طرح لوگ چیخو چلا رہے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں چلا رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، ہمیں خوشی ہے کہ وہ شہید ہوئے، انہوں نے اللہ کے راہ پہ جان دیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ اس پر غم ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بقا پا لی ہے۔ ہم نے مرنا آج بھی ہے اور کل بھی مرنا ہے، ہمیں ہمارا دین یہی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں اس کی مسلمان دنیا میں گھاٹے کی طرف کیوں جا رہا ہے، ہمیں ذلت اور خواری کیوں درپیش آ رہی ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہماری جنگ جو ہے وہ بقا کی طرف نہیں ہے، ہماری جنگ موت کے بعد کی طرف بھی نہیں ہے، ہماری جنگ یہاں فانی دنیا کی طرف ہے، ہماری دوڑ ہے اس طرف، ہم پیسہ کمائیں، کار کوٹی ہو، بنگلہ ہو، ہمارے ریسٹورنٹس ہو، ہماری بزنس ہو، دن رات بھی ہمیں پیسے کمائیں۔ میرے ہمارے ساتھیوں، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی تو ہر صورت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری جدوجہد جو ہے اس کو اور کتنا طویل بنائے گا یا اور اس کو کتنا کم کرے گا۔ ہم نے اگر اسی طرح جو کہ پچھلے 7-8 ماہ سے کچھ آپ لوگوں کی کارستانیوں کی وجہ سے تحریک کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کی جو رفتار ہے اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے، اگر ہم نے اس اپنی روش کو نہ بدلا اور ہم میں جو کالی بیڑے ہیں ان کے گریبان نہ پکڑے تو آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں کشمیریوں کی اور کشمیری مسلمانوں کی وہ آپ کو معاف نہیں کریں گی، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ میں ایک بات واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی اور خود مختاری جو ہے وہ پاکستان کی دشمنی پر مبنی ہے، حالانکہ ہمارا آئین جو ہے 76 میں جب ہم نے بنایا اس کو، اس میں کہا کہ ہمارا ہر ممبر جو ہے وہ مملکت پاکستان کا خیر خواہ ہوگا، یہ ہمارے آئین میں شامل ہے، مملکت پاکستان کا خیر خواہ ہوگا، نوکر شاہی کا غلام نہیں ہوگا، ہمیں شاہی قلعے میں ڈالنے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کلاس کے قلعے میں ڈالنے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم نوکر شاہی کے غلام نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں کوئی قربانی دینی ہے تو اپنے قوم کے لیے دینی ہے، اپنے وطن کے لیے دینی ہے، اپنے ان حقوق کی جنگ لڑنی ہے جو کہ ہمیں ہمارا حق ہے، وہ پیدائشی حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اجتماعی طور پر بھی آپ اس تحریک میں شامل ہوں، اس کارواں میں شامل ہوں، اور انفرادی طور پر بھی آپ گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو حقوق کی جنگ جو شروع ہے کشمیر میں اس کی جنگ لڑیں، اس کی آزادی کی بات کریں، اور جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کو بھی آپ اپنا قائل کریں کہ ہماری جو تحریک ہے، ہماری جو جنگ ہے وہ کسی کی مخالفت پر مبنی نہیں، کسی کی دشمنی پر مبنی نہیں، بلکہ وہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ ہندوستان نے وہاں سے آج بھی جانا ہے اور کل بھی جانا ہے،
وہ تو نکلے گا، اس پر نکلنا ہی ہے۔ کشمیریوں نے کیا کرنا ہے آزادی کے بعد، وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہندوستان کو انشاءاللہ ہم ضرور وہاں سے نکالیں گے اور ضرور نکلے گا۔ اور میں آپ سے میرا وقت کی کمی ہے، میرا تقریر تو پہلے میں نے کیا دیا کہ مسئلہ چند آپ سے باتیں کرنی تھی، تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ تحریک جو ہے جس موڑ پر پہنچ چکی ہے آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں، آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں۔ یہ نہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ برطانیہ میں اور بیرون کشمیر جو ہے اس میں دو ہی محاذ ہیں، ایک سیاسی ہے اور ایک سفارتی ہے، اور یہ آپ سری نگر کے حالات ایسے ہیں کہ 17 دن کرفیو رہنے کے باوجود لوگوں نے گھاس کھا کر جو ہے تحریک کو زندہ رکھا، لوگوں نے گھاس کھا کر 17 دن کرفیو کے باوجود تحریک کو زندہ رکھا، اور ہم ان کے لیے یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے رقم بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے دوائیاں بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے کپڑے بھیج سکتے ہیں، اور کچھ جو ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں وہ اجتماعی طور پر کر سکتے ہیں وہ، اور اپنی کاز کو جب کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ تحریک کے لیے آپ کو کال دیتی ہے تو آپ اس پر حاضر ہو جائیں، چاہے وہاں مظاہرہ ہے لندن میں، چاہے کہیں اور جلسہ ہے، آپ اپنا قومی اور اپنا ملی فرض جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ کیوں کہ آپ کی جنگ جو ہے وہ بقا کی طرف ہے، آپ کی دوڑ جو ہے وہ بقا کی طرف ہونا چاہیے۔ بقا کیا ہے؟ موت کے بعد، اس کے بعد تو کوئی موت آنے والی نہیں۔ اصل جو مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے موت کے بعد جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہم نے دوڑ لگانی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تقریروں کا وقت وہ جو کیا کہتے ہیں وہ پارٹیاں والا ہوتی ہیں اور ریسٹورینٹس میں تو اخباروں میں پڑھتے ہیں، پر ہمیں تو اتنی ابھی توفیق نہیں ہوئی کہ پارٹیاں والا ریسٹورینٹ میں لوگوں کو دیں، وہ سے کوئی آدمی آ گیا روز کو دے دی پارٹی، اور کوئی چیئرمین صاحب آ گئے اس کو بھی پارٹی دے دی، تو اب وقت یہ ہے کہ قوم کو شہید ہوتا ہے اور اسی میں جو ہے برکت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کسی ایک آدمی کا کام نہیں، سب کشمیری کا کام ہے مل کر تحریک آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ اب میں اپنے اگلے پر لنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے وطن دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب 2 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جناب مجید وانی صاحب کے روح کو احسان ثواب کے لیے پڑھیں۔ جیسا کہ وقت کی قلت بھی ہے، زیادہ کوئی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بریڈفورڈ میں لبریشن فرنٹ کے عادل عزیز جناب عظمت اے خان صاحب نے میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے، میں نے دیکھا انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے دن رات ایک کیا ہوا۔ اسی طرح بریڈفورڈ میں اگر سارے نہیں لیکن 1% بھی لوگ اگر اس طرح کام کریں تو میرے خیال میں وہ نہیں ہوگا کہ جب ہم آزادی تک عظمت صاحب کی دن رات کی محنت نے یہ پھل دیا کہ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے اور یہ جشن منا رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ بجائے یہ کہ اپنی کرسی کے دباؤ دو کے بجائے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کریں تاکہ مادر ملت کہ وہ نوجوان جو شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں انہیں بھی یہ پتہ چلے کہ ہمارے پیچھے بھی کچھ آدمیوں کا ہاتھ ہے یا کوئی ہمارے ساتھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو مہینہ رمضان شریف کا ہے اس میں مسلمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، خصوصی طور پر رمضان اس لیے آیا کہ
कि जब आप रोज़ा रखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि भूखे प्यासों की प्यास कैसे होती है, भूखे की भूख कैसे होती है। तो जितना भी शुक्राना या सबका खैरात है, मेरे ख्याल में सब आज़ाद को चाहिए जो वो सारे का सारा आज़ादी कश्मीर के लिए फंड मुहैया करें। और उसके लिए बेहतर तरीका मैं यही समझूँगा, जनाब डॉक्टर गोरी साहब ने जो कि रिलीफ कश्मीर रिलीफ फंड का अदारा खोला हुआ है उसमें दे, तो उससे कश्मीर फ्रीडम में ज़्यादा तकमीन पहुँच सकती है। सबसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर तहरीक अमल पार्टी बरतानिया जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ साथ दम चलेगी और हम जितनी भी मदद पहुँचा सकेंगे हम लिबरेशन फ्रंट को बचाएंगे। लिबरेशन फ्रंट बहुत मैं इनके काम की दाद ज़्यादा ज़्यादा हो गया तो शायद ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ले लिया, बातें तो बहुत हैं आज़ाद। मैं इसी पर अपने जज्बात को खत्म करता हूँ और मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आज़ादी कश्मीर के लिए जितने से जितना भी काम हो सके, जितना थोड़ा है, आप सब जितना ज़्यादा काम हो सके करें। सब भाइयों को एक बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद। अब मैं जनाब ब्रैडफोर्ड की समाजी और सियासी शख्सियत जनाब राजा जावेद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा जावेद साहब। हमारे लिबरेशन फ्रंट और नाम समाजी सियासी कारकुनां, मेरे कश्मीरी भाइयों बुजुर्गों, गालिब साहब से मैं अर्ज करूँगा कि पता नहीं क्या वजह गफूर साहब को बुलाते हुए तो तारीख अमल का नाम ले लिया, लेकिन मेरा तल्लुक भी एक सियासी जमात से है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी एक हिस्सा है तारीख आज़ादी कश्मीर में, और आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो मकसद उस अजीम मुजाहिद, उस अजीम शहीद को खराज अकीदत पेश करना है जिसने मादर वतन के लिए कुर्बानी दी, जिसने ना मेरे लिए, ना खालिद साहब के लिए, ना लिबरेशन फ्रंट के लिए, ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस अजीम मकसद के लिए जान दी है जिसके लिए आज कश्मीर का बच्चा बच्चा वादी कश्मीर में लड़ रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत इस अमर की कि ना सिर्फ हम इन अजीम शुदा की बरसियां मनाएं, बल्कि उनके शाना बशाना जिस तरह मुमकिन हो सकता है उस तरह हम लड़ें, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें। मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूं, वहां जो कुछ मैंने देखा है खुदा जानता है कि सख्त मायूसी हुई है। पूरे आजाद कश्मीर में तारीख आजादी कश्मीर का कोई वजूद, जिस तरह यहाँ हजारों के हिसाब से यहाँ कश्मीरी आबाद है, लेकिन इस हाल में बैठे हुए कश्मीरियों को देखकर महसूस होता है कि बिल्कुल महदूद से कश्मीरी यहाँ रहते हैं। इसी तरह वहाँ मीरपुर में बैठे हुए हमें महसूस होता है कि तारीख आजादी कश्मीर का कोई वजूद नहीं, ये कश्मीर का हिस्सा नहीं है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। कौंसलर अजीब साहब वहाँ पाकिस्तान गए, कुछ और दोस्त भी वहाँ पाकिस्तान गए, इन्होंने भी वहाँ पाकिस्तान में देखा आजाद कश्मीर में, मैं कह सकता हूँ कि मीरपुर और देखा मुजफ्फराबाद में, पुंछ में। अगर कहीं कोई नजर आता है तो मुजफ्फराबाद के उन पहाड़ियों के उस तरफ जहाँ मकबूजा कश्मीर की वादी उनसे नजदीक मिलती है, बाहर की उन पहाड़ियों की तरफ जहाँ मकबूजा कश्मीर के लोग उनके पास पहुंच सकते हैं, उनकी आवाज, उनके जज्बात पहुंचते हैं। आजाद कश्मीर का बाकी का इलाका जिस तरह यहाँ बरतानिया बहुत दूर है, इसी तरह वहां महसूस होता है कि उन लोगों का कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आज जरूरत इस अमर की है कि यहाँ हम जो लोग आजादी के साथ कमा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारे पास वसाइल हैं, हम जंग में तो हिस्सा नहीं ले सकते, हम वहां उनकी अमली तौर पर और तो कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो मदद कर सकते हैं कि
वहाँ जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनके लिए फाइनेंस का बंदोबस्त करें, उनके लिए अमली तौर पर हम कश्मीरी, हमें समझता हूँ हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। अगर एक शख्स कश्मीर का बेटा अपनी जान दे सकता है, तो अगर हमें कोई हुकूमत, कोई मुल्क ये मजबूर करे कि हम यहाँ से उनकी असली की क्यों इमदाद कर रहे हैं, फाइनेंस की क्यों इमदाद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें कुर्बानी देनी चाहिए। हमें ऐलानिया ये बात कहनी चाहिए कि हम उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं और करनी चाहिए। बरतानिया में रहने वाले कश्मीरियों, मैं समझता हूँ कि आपका सबसे ज्यादा फर्ज बनता है कि आजाद कश्मीर के लोग तो तारीख आजादी को भूल चुके हैं, बिल्कुल वो लोग कोई कुर्बानी, वहाँ सारी की सारी सियासी जमातें इंक्लूडेड बाय ओन पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अपनी आजाद कश्मीर में बेशमूल लिबरेशन फ्रंट, बेशमूल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जितनी भी सियासी जमातें काम कर रही हैं और नाम आज इनकलाबी भी बनी हुई है वहाँ, वो सारे के सारे लोग कोई काम नहीं कर। अगर बाहर से आप लोगों का कुछ कंट्रीब्यूशन जा रहा है या मकबूजा कश्मीर के लोग खुद लड़ रहे हैं, उन लोगों ने, खासकर मकबूजा कश्मीर के नौजवानों ने आजाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के तमाम जो जगादरी टाइप लीडर थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। और मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उन नौजवानों का, उन दोस्तों का, उन भाइयों का साथ दें जो तारीख आजादी कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं। खुदा के लिए ये आप बात टोको रखें कि आजाद कश्मीर से आपको याद आएंगी, ये काम होगा तो उसके नाते आप काम करेंगे। अब खालिस्तान आपका ये जिम्मेदारी आज हो रही है कि आप यहाँ बरतानिया में रहते हुए मकबूजा कश्मीर के लड़ने वाले रीत पसंदों की मदद करें, उनके लायकीन की अमदाद के लिए कुछ भेजें, और जो लोग महाजरीन बनकर आजाद कश्मीर में आ रहे हैं अपनी बसात के मुताबिक उनकी भी मदद करें। इसी के साथ मैं मेरे ख्याल में राजा साहब को थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैंने तो कहा था कि लीड से जनाब गफूर दयाल साहब, मैंने उनकी जमात का नाम नहीं लिया था, तो बहरहाल मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने राजा साहब का नाम नहीं लिया, जमात का नाम नहीं लिया, उसके लिए मैंने सियासी जमात कहा था। तो अब मैं जनाब गुजारिश करूँगा राष्ट्रीय ब्रांच लिबरेशन फ्रंट ब्रांच के सदर जनाब क़य्यूम अब्दुल जमाल साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सुनो ऐ साकनान बज़्म गीती, निदाए आ रही है आसमान से। सुनो ऐ साकनान बज़्म गीती, निदाए आ रही है आसमान से। क्या आजादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जामिदा से। साहब सदर और मौजूद इलाका, अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में हर लम्हा अनगिनत लोग नमूदार होते हैं और हर पल न जाने कितने लोग इस दार फानी से दार अब्दी को मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, लेकिन सारे के सारे मैं इस वक्त चंद लोगों के गोशे गुमनामी में रुपोश हो जाते हैं। और जो लोग हमेशा की जिंदगी पाते हैं वो मैं समझता हूं कि वो एक मखसूस उनका तबका से ताल्लुक है। वो कौन लोग हैं? वो वही हैं जो अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपने वतन के लिए जीते हैं। अगर मरते हैं तो अपने मफादात पे नहीं मरते, अपनी कौम के लिए अपनी जान को लुटाते हैं। हज़रात गिरामी, दास्तान हुर्रियत कश्मीर मैं समझता हूँ इशफाक मजीद वानी के बगैर ना मुकम्मल है, ना तमाम है, अधूरी है। अगर मैं ये कहूँ तो मैं हक बजान लूंगा कि चरख़े हुर्रियत पे अगर मकबूल बट चांद है तो इशफाक मजीद उस पे एक कुतबी तारे में उसे कह सकता हूँ, शुमाली तारे में कह सकता हूँ, जिसने अपने जान को लुटा के अपनी कौम को सुबह आजादी के पैगाम दे दिया। हज़रात गिरामी, अगर मैं ये कहूँ कि मकबूल बट बारात हुर्रियत का दूल्हा था तो इशफाक मजीद वानी उस बारात में वो शाहबाला था जिसने अपनी कीमती
और लाल जवान लहू की कुर्बानी देकर अपनी इस धरती मां के मांग में अपना संदूर भर दिया। हजरात गिरामी कि लोग कहते हैं आम जो लुगात में उसमें ये लिखा है कि मरने के मानी फना होना है, लेकिन हुर्रियत की दास्तान इससे निराली है। उसकी लुगत में इसकी मानी मुख्तलिफ है। हुर्रियत की लुगत में ये लिखा है जो मरता है वो फना नहीं होता, वो जिंदा होता है। ये कुरान में भी लिखा है जो शहीद होता है वो मरते नहीं जिंदा होते हैं। आज मैं ये समझता हूँ मकबूल भट्ट को बाहर क्यों ने तख्तादार पे चढ़ा के उससे तख्तादार पे चढ़ा के उसकी जान नहीं ली, उससे वो नहीं मार सके, उसके गले को नहीं गूंद सके। आज भी वो तारीख जिसमें उसने अपनी जान लुटाई, जिसकी खातिर उसने तख्तादार को कबूल किया, वो तारीख उससे आज बढ़कर तब वो ताब के साथ चमक रही है, चल रही है, रवा गवा है। अल्लाह गिरामी कश्मीर, शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट, मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय इशफाक मजीद वानी के सीनों को गोलियों से परोने के बाद भी अगर वो ये समझे कि उनने उसे फना कर दिया तो हजरात वाले ये उनकी खाम ख्याली है। आज जितने भी कश्मीरी मौजूद हैं, आज मकबूल भट्ट, आज मजीद इशफाक वानी उनके सीनों में आज भी जिंदा है, उनकी दिलों में धड़कन बन के धड़क रहा है। आज भी उनकी रूह में वही एक तड़प है। मैं कहता हूं कि उन्हें एक मकबूल भट्ट की जान ली, एक मजीद वानी इशफाक की जान ली, लेकिन उन्हें जान नहीं ली। हज़रात गिरामी उन एक एक जान के बदले आज हजारों नहीं लाखों मकबूल भट्ट पैदा हो चुके हैं, मजीद इशफाक वानी पैदा हो चुके हैं। आज उनकी वो तारीख मैं समझता हूँ फना उससे कहते हैं जब नजरिया खत्म हो जाए। जिस नजरिए की खातिर उन्हें अपनी जानें लुटाई, अगर वो जिंदा है तो मैं कहता हूँ जानें लुटाने वाले उसी ताब के साथ आज भी जिंदा है। आज मैं समझता हूँ ये जो मजमा यहाँ पे है, जो आंखों में चमक है, जो जबीनों पे एक रोशनी मुझे दिखाई दे रही है, ये उससे ईमान की तरोताजगी का एक वाज़ेह ऐलान है। हज़रात गिरामी कश्मीर जिसको आलम इंसानियत के लोग जन्नत अर्ज़ी के नाम से पुकारते हैं, अगर कोई इसकी माज़ी में जाए तो हज़रात वाला इब्न बतूता के अबवाब को उलट के देखे, जहांगीर अकबर की रूह से जाके पूछे, तज़र की जहांगीरी को के अबवाब उलट डाले तो एक ही उसमें आवाज है कि कश्मीर ये तो खुशियों के मस्कन है, कश्मीर ये तो तरानों के देश है, ये तो बुलबुल का इंतखाब है। लेकिन हजरात वाला इन सब ने कश्मीर की बातन में झांकने की तकलीफ नहीं की, इन्होंने उसके जाहिर को देखा, उसके बातन में नहीं के। दर हकीकत वादी कश्मीर में बड़े इसने जुल्म सहे हैं, इसने बड़े आलाम और मसाइब बर्दाश्त किए हैं। तारीख में कुछ ऐसे मुआरफ भी मिलते हैं जिनने इस आफ्ताब की चमक दमक में, जिनने इस चांद की सनहरी तबानी में कश्मीर की वादी में मासूम फूलों को गैरों के हाथों मिसलते हुए भी देखा है, जिनने ये भी देखा है कि अंग्रेजों के हाथों से नीलाम होते हुए भी, जिनने ये भी देखा है कश्मीरी कोड़ियों की मौल बिक रहे हैं। तो इस मौके पर अपनी जलंधरी की रूह पुकार उठी, उससे खामोश नहीं रहा गया। वो क्या कहता है कि लूट ली इंसान की किस्मत 75 लाख में, लूट ली इंसान की किस्मत 75 लाख में, बेटी कश्मीर की जन्नत 75 लाख में, मर्द का सरमाए मेहनत 75 लाख में, औरतों का गोहरे असमत 75 लाख में, मुल्क को मिल्लत माल और जान 75 लाख में, हाँ 75 लाख में। हज़रात गिरामी जब से फिरौन वक्त ने इस कश्मीर के सीने पे एक कंट्रोल लाइन की नाम पे जो एक हद फासल खींची, तो तब से लेके अब तक कश्मीर के दोनों जानिब लोग अपने आबाई नातों, अपने आबाई राष्ट्रों, मजहबी वास्तों के हिजर फराक में आज भी सिसक रहे हैं और तड़प रहे हैं। हजरात
भाई भाई के फराक में और माँ बेटी के हिजर में हरमाई नसीबी की तस्वीर बनी बैठी है। लेकिन आज कश्मीर पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ उसकी बहू बेटियां जुल्म सितम की चक्की में पिस रही हैं। आज शीर और बच्चों को संगीनों में परोया जा रहा है। आज नौजवानों को के खून को आजाद समझ के गलियों बाजारों कूचों में पानी की तरह बहाया जा रहा है। हजरत वाला, आज कश्मीर में कोई आंगन ऐसा नहीं, कोई सहन ऐसा नहीं जिसमें कश्मीर की तारीख में शहीद होने वालों की एक न एक कब्र मौजूद न हो। आज कोई माँ ऐसी नहीं है जिसका बच्चा इस तारीख में ज़बा न हुआ हो। आज कोई बहन ऐसी नहीं है जिसका कोई वीर उससे बिछड़ा न हो। आज मैं समझता हूँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो यतीम न हुआ हो। आज मैं ये समझता हूँ कोई ऐसा वालिदैन नहीं है जिनके बुढ़ापे की जो सहारा वो इन जालिमों ने ना छीना हो। लेकिन अफसोस, आज के जो हम मुसलमान जो कश्मीरी हैं, आजाद कश्मीर में भी उनकी कानों पे जून तक नहीं रेंगती। वो ये समझते हैं सरहद के उस पार के वो किसी और दुनिया से उनका ताल्लुक है। तो मैं क्या कहूँ हज़रात गिरामी, एक जो मुसलमान है वो एक जिस्म की मानन होता है। जिस्म के एक हिस्से में कहीं जुबन हो, कहीं तकलीफ हो तो सारा जिस्म महसूस करता है। कितनी हमदर्द होती है अपने जिस्म की आंख, चुभे काटा पाँव में तो रोती है आंख। कितनी हमदर्द होती है आंख अपने जिस्म। रात वाला मैं समझता हूँ मुसलमान और बिल्कुल समझ चाहिए कि आंख की माने हम हिसास हों, जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ हो तो हमें महसूस होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, आज हमारे जिस्म के पूरे अज़ू कट रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारी आंखों में आंसू तक नहीं आते। मैं खुद अपना आप भी बता रहा हूँ कि हम इस कश्मीर के डोनेशन के लिए, चंदा के लिए हम मुख्तलिफ मकामों पर गए तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे मनाज़र हमारे सामने आए कि खून के आंसू रोने का जी चाहता है कि आज इंसानियत को क्या हो गया। आज एक इंसान बस्ती के किस मंजिल पर जा गिरा है। आज हमें इंसान की कदर नहीं रही कि इंसान की कीमत क्या थी। इंसान की ये कीमत थी, हदीस में आया अगर एक मुसलमान का नाहक खून बह गया तो जानिए पूरी इंसानियत कत्ल होगी। तो आज देखिए कितने कश्मीरी बेगुनाह शहीद हुए, कितने मासूमों को उनके तनों से उनके सरों को जुदा किया गया। क्या है कितने जाने। तो वक्त की किल्लत की बात में अपने इस मौजूद को समेटते हुए अपने आखिरी अल्फाज में कहूंगा कि हजरात वाला, आज हमें इतना अरसा गुजर गया है कम और बेश 45 पर। जो उस वक्त के वो बच्चे थे वो आज जवान हैं, जो जवान थे वो आज बूढ़े हो चुके हैं, और जो बूढ़े थे वो बेचारे आजादी की आस लगाए कमरों में अपनी नींद सो चुके हैं। लेकिन क्या ये आजादी का पल हम कश्मीरियों के नसीब में नहीं है। अफसोस कि हमने यूएनओ की करारदादों पर भरोसा की मुद्दत हो गई, बाहर से रेल की भीख हम मांगते रहे और कुछ अपनों का मुंह भी हम देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसी साबित होता है अगर कुछ करना है तो हमें ही करना है। किसी और ने आजादी को हमारे सामने तश्तरी में सजा के हमारे सामने पेश किया। और जब कौमें, मैं समझता हूँ, अपने आप को पहचान ले तो कोई मरला उनके लिए मुश्किल नहीं रहता। आज अगर हमने इनफरादी गलतियां की तो खुदा हमें माफ कर सकता है, लेकिन इज्तिमाई हमसे गलती हुई तो यकीन मानिए ना खुदा ने पहले किसी कौम को माफ किया ना अब करेगी, और हमारा हश्र उनसे भी दर्दनाक होगा। ज़ात वाला, मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला हमें उस शहीद के रास्ते पे चलते हुए हमें भी ये तौफीक बख्शे, हम इस आज़ादी के फल को हम समझें, और इसके लिए जिस किस्म की मेहनत की जरूरत है वो हम मेहनत करें। और मैं अपने इस आखिरी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा, और जो मेरा ईमान है कि आज मकबूल बात की रूह भी, मुझीर इशफाक वानी की रूह भी यही अल्फाज उनके रवा दवा होंगे कि मुझे अपने वतन की खाक है अफलाक से बेहतर, मुझे अपने वतन की खाक है अफलाक से बेहतर, ये मट्टी जिंदगी मेरी, ये मट्टी जान जा मेरी।
मैं एक दफ़ा फिर मुकर्रीन से गुजारिश करूँगा कि हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत है, प्लीज़ आप बराए मेहरबानी 3 मिनट से 4 मिनट तक टाइम लें। अब हमारे यहाँ कुछ इंग्लिश मेहमान भी बैठे हुए हैं, उनके लिए हमने कुछ इंग्लिश स्पीकर जो हैं उन्हें दावत देंगे कि वो स्टेज पर आएँ। सबसे पहले मैं ब्रैडफोर्ड के साबिक़ लॉर्ड मेयर जनाब मोहम्मद अजीब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और इंग्लिश में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मोहम्मद अजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम कश्मीरी पाकिस्तान भाइयों, Mr. Chairman, my Kashmiri brothers, you have already heard some of the speakers who have explained to you the current happenings in the occupied Kashmir. I don't think that there is anything secret about it. Here in this country, from time to time, the press and the mass media have reported the unprecedented nature of atrocities which are being committed by the Indian security forces in the occupied area of Kashmir. In a recent report in one of the national newspapers, it was reported from the occupied Kashmir that the Indian troops are now engaged in gang raping of helpless Kashmiri women. Besides, every day, innocent and helpless Kashmiris are being killed and butchered by the Indian troops. And this is happening at a time, ladies and gentlemen, when not long ago, we had a situation in this world when Iraq invaded Kuwait. The United Nations passed a resolution with the help, particularly of America and other Western nations, against that forced occupation, and the resolution was implemented within a few months. And yet, we are witnessing a situation in Kashmir that for the past nearly 46 years, several resolutions have been passed by the United Nations, but no action has been taken. And each time, when there was a debate in the United Nations on this issue, the same superpowers vetoed against any possible action which should have been taken against India. Now, the Indian government, since the initiation of Gulf War, intensified her activities in the form of killing, torturing, and maiming many Kashmiris. And they did it deliberately because they wanted to hide all these atrocities in the shadow of Gulf War. Now the Gulf War is over. Now the Kashmiris will say to this country, to other countries,